My dear class first year students, today we discuss the chapter 1 set. In mathematics, the first chapter is set, then I introduce you what is set, representation of set, टाइप ऑफ सेट. अब टाइप ऑफ सेट में एम्प्टी सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, एंड इन फोर्थ टॉपिक सबसेट ऑफ एनी सेट, एंड इन फिफ्थ कंटेंट पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट. Then dear students, firstly we discuss what is the set. Set किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी को आप एक सिस्टमेटिक वे में कर दीजिए, देन दिस इज द सेट. इन ए सिंपल वे कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज नोन एज द सेट. किसी भी चीज को आप एक सिस्टम में बना दीजिए और ताकि वो पता चल जाए कि व्हाट इज दिस. This means collection of the well-defined object is known as the set. Suppose natural number, real number, set of integer, whole number, square of the natural number, all are the well-defined. All the students of the class first year A student या class first year B students are all well defined. Each students are defined in the class first year A. Roll number 1, roll number 2, roll number 3, roll number 4. Then this is a system in a systematic way. Then this is the set. What is set? Collection of the well-defined object is known as the set. And how can you represent the set? सेट को हम कैसे लिखते हैं? सेट को लिखने का दो तरीका है. There are two ways to represent the set. First is roster form and second is the set builder form. Then we discuss what is the way of representation of the set. Now we discuss the set, and after discussing the set we discuss how can represent the set. Representation of सेट. दो तरीका है सेट को लिखने का. फर्स्ट जो है, पहला तरीका या फर्स्ट वे है रोस्टर फॉर्म. क्या है? रोस्टर फॉर्म. और जो सेकेंड वे है सेट को रिप्रेजेंट करने का, वो क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म. Now what is the roster form? Roster form, suppose किसी सेट के एलिमेंट. अब एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट होता है सेट का मेंबर. जैसे क्लास फर्स्ट ईयर आप द मैथ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, दिस इज द सिस्टमेटिक वे. यदि हम सारे स्टूडेंट्स का नाम लिख दें और एक ब्रैकेट बना दें तो हो जाएगा रोस्टर फॉर्म. दिस मीन्स
every element or every member of the set in the bracket is way of the roster form. Suppose a natural number, set of natural number, example, roster form. Suppose is set A. अब आप इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? और सेट क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कैसे लिखेंगे नेचुरल नंबर? हम सारे एलिमेंट को एक ब्रैकेट बना के सारे एलिमेंट को हम लिख देंगे, देन दिस इज द रोस्टर फॉर्म. Every element of the set are written, then this is the roster form. Suppose set of natural number, then you write all the natural number in a bracket. Suppose this is 1, ब्रैकेट बनाया आपने, ऐसे लिख दिया 1 2 3 4 5, ऐसे डैश 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 डैश. अब ये क्या है? दिस इज द रोस्टर फॉर्म. सेट के मैंने सारे एलिमेंट को मैंने लिख दिया है, तो ये क्या हुआ? ये रोस्टर फॉर्म हो गया. अच्छा, दूसरा एग्जांपल, स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर. सपोज दिस इज द बी. Now we give the another example in roster form. Square of the natural number. Then this is another set. 1 square 1, 2 square 4, 3 square 9, 4 square 16, 5 square 25. This is the another example. Now we give another example, one example more. Suppose this is the another example in roster form. Another example in roster form. Suppose 2 upon 3, 3 upon 4, 4 upon 5, 5 upon 6. This is the another example in the roster form. Then student, what is the set? Collection of the well-defined object is known as the set. And how can represent the set? Represent the set in the two ways. First, roster form, and second, set builder form. What is the roster form? यदि हम सेट के सारे एलिमेंट को ब्रैकेट बना के लिख देते हैं, then this is the roster form. And then what is the set builder form? This is the example of set roster form. This is the example of roster form. This is the example of roster form. Roster form. Now, अब यदि हम इस सारे सेट को एक दूसरे वे में, एक दूसरे तरीके से लिखते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ये सेट बिल्डर फॉर्म है. व्हाट इज द अनदर वे? व्हाट इज अनदर वे टू राइट दिस सेट? हमको इस सेट को लिखने का दूसरा तरीका क्या है? वो तरीका है, जो प्रोसेस है, उसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म में करते क्या है? सेट की जो मेन प्रॉपर्टी है उसको हम वर्ड में लिख देते हैं. सेट की जो मेन प्रॉपर्टी है, सेट के मेंबर का, सेट के एलिमेंट का जो मेन प्रॉपर्टी है, उसको हम वर्ड में लिख देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है सेट बिल्डर फॉर्म. सपोज अब जैसे ये जो सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है, ये क्या? ये रोस्टर फॉर्म में है. यदि हम इसको एक सिंपल वे में, एक इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है वर्ड में लिख दें, तो वो क्या हो जाएगा? सेट बिल्डर फॉर्म. सपोज अब सेट बिल्डर फॉर्म में हम
इस एग्जाम्पल्स को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? अब देखो, जैसे सेट ए है, जैसे ये सेट ए है, तो व्हाट इज द मेन प्रॉपर्टी? मेन प्रॉपर्टी, दिस इज द नेचुरल नंबर। अब हम इसको क्या करेंगे? अब हम एक सिंपल एक वर्ड में लिख देंगे। देखो कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका ध्यान से देखिए। ए फिर क्या लिखेंगे? ए इक्वल टू एक्स। एक्स क्या है? एक्स ये एलिमेंट है, ये मेंबर है सेट का। एक्स क्या है? एक्स ये एलिमेंट है, ये मेंबर है। अब हम इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या है? इसकी मेन प्रॉपर्टी है ये नेचुरल नंबर है। अब हम लिख देंगे क्या? x such that x is a natural number. X is a natural number. This is the way. अब ये क्या हो गया? अब ये इसी सेट को लिखने का ये जो है जो तरीका है वो सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। अच्छा आप देखिए, अच्छा x such that x इज ए नेचुरल नंबर। अब सेट b है, सेट b है। अब सेट b को यदि आपको लिखना हो सेट बिल्डर फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे? देखिए सेट b क्या है? सेट b का आप ध्यान से देखिए, ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो व्हाट इज द मेन प्रॉपर्टी? मेन प्रॉपर्टी है ये क्या है? ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। तो इसका जो मेन प्रॉपर्टी है हम उसको वर्ड में लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो जो है हमारा हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। वैसे देखो बी, अब देखिए अब मेन प्रॉपर्टी क्या है? एक्स such that x, ऐसे आप लिख सकते हैं x इक्वल टू n स्क्वायर n। अच्छा x क्या है? n स्क्वायर। और n क्या है? n नेचुरल नंबर है। x वेयर, अब यहाँ पे लिख दीजिए n के बारे में, n के बारे में लिख दीजिए वेयर n is a natural number, where n is the natural number। अच्छा आप देखो ये जो सेट आप देखिए, अब ये जो सेट C है इसको यदि हम लिखना चाहें सेट बिल्डर फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे? अब जरा यहाँ से देखो, ये क्या है? ये 2 है और ये 1 more than 3 है, यानी एक अधिक है। ये 3 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 6 है। तो क्या है? जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 1 अधिक है। तो देखो अब इसका मेन प्रॉपर्टी आप कैसे लिखोगे? लिखने का तरीका जो है वर्ड में लिखने का क्या तरीका है? देखिए सी ऐसे आप लिखो x क्या है? x ये सेट का एलिमेंट है। x such that x इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1। अब देखिए n क्या है? अब n देखो 2 से शुरू हो रहा है और कहाँ पे फिनिश हो रहा है? 5 पे। तो आप लिख सकते हैं वेयर n इक्वल टू 2, 3, 4, 5। आप लिख सकते हैं वेयर, अब n के बारे में डिस्कस कर दीजिए, वेयर n इक्वल टू 2, 3, 4, 5। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, n वेयर n क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया कि सेट क्या होता है, सेट को कैसे लिखते हैं। रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका होता है, एक रोस्टर फॉर्म होता है और एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? यदि हम सेट के सारे एलिमेंट को ब्रैकेट बना के लिख देते हैं तो रोस्टर फॉर्म हो जाता है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? यदि हम
सेट के सारे एलिमेंट का जो मेन प्रॉपर्टी है उसको वर्ड में एक लाइन में लिख देते हैं तो क्या हो जाता है, वो सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये जो सारे एग्जाम्पल हैं, एक इसके एग्जाम्पल हैं सेट बिल्डर फॉर्म के, और ये क्या है, रोस्टर फॉर्म। अब देखिए, अब आपको सेट में कुछ टर्म के बारे में मैं डिस्कस कर दूं अभी कि कुछ टर्म क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए कि वन क्या है, वन एलिमेंट है इस सेट का, टू क्या है, एलिमेंट है, थ्री एलिमेंट है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये क्या है, ये जो सिंबल देखिए क्या है, ये बिलोंग का सिंबल है। मतलब अब ऐसे लिखेंगे वन, ऐसे लिखेंगे वन बिलोंग टू ए, इसका मतलब वन जो है, वन सेट ए का मेंबर है, वन बिलोंग इन सेट ए। अच्छा, अब देखो, आप जैसे यहाँ पे जैसे आप ये देखो माइनस वन तो मेंबर नहीं है सेट ए का, तो हम ऐसे लिखेंगे -1, ऐसे लिखते हैं -1 डज नॉट बिलोंग। ये किसका सिंबल है, डज नॉट बिलोंग, मतलब बिलोंग नहीं करता है। -1 डज नॉट बिलोंग इन सेट ए। तो आपको ये चीज समझ में आ गया, ये किसका सिंबल है, ये सिंबल है बिलोंग का, यानी एलिमेंट जो उसमें सेट में आता है। ये किसका सिंबल है, डज नॉट बिलोंग। ये दो टर्म का मैंने आपको सिंबल डिस्कस किया है, और मैं और भी डिस्कस करता रहूँगा जैसे जैसे टर्म आते रहेंगे। अच्छा, उसके बाद से अब देखिए, अब हम कुछ डिस्कस करते हैं कि टाइप ऑफ सेट। जैसे एम्प्टी सेट क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। टाइप ऑफ सेट में हम क्या डिस्कस करेंगे कि एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट क्या होता है। देखिए, एम्प्टी सेट क्या होता है, हम डिस्कस करेंगे कि एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट के बाद हम डिस्कस करेंगे इक्वल सेट क्या होता है। इक्वल सेट के बाद हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एम्प्टी सेट। देखिए, नाम से ही आपको लग रहा होगा, नाम से ही लग रहा है एम्प्टी मतलब खाली। एम्प्टी मतलब खाली हो, बिल्कुल कोई उसमें मेंबर ना हो सेट में, तो वो क्या होता है, एम्प्टी सेट। जैसे देखिए, मैं आपको एग्जांपल से ऐसे डिस्कस करने जा रहा हूं। आप क्या, एम्प्टी सेट, व्हाट इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, देखिए, जैसे एम्प्टी सेट का मतलब होता है कि जिस सेट में कोई भी मेंबर ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं कि एम्प्टी सेट। जैसे एक एग्जांपल आप देखो, एक ऐसा नेचुरल नंबर बताइए जो 2 से ग्रेटर हो और 3 से लेस हो। ऐसा कोई नेचुरल नंबर आपने देखा है या पढ़ा है, सुना है कि जो 2 से बड़ा हो और 3 से कम हो। तो सपोज एग्जाम्पल, एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल ऐसे x such that x greater than 2 less than 3, और x क्या है, where x is where x is natural number, where x is natural number, where x is natural। ये किसका एग्जाम्पल है, ये जो है, ये एग्जाम्पल है एम्प्टी सेट। मतलब ये जो सेट ये है, ये सेट एकदम ऐसे है, ऐसे इसको ऐसे लिखते हैं, एकदम खाली है, कोई एलिमेंट नहीं है, इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट। या इसको ऐसे ब्रैकेट बना देते हैं और ब्रैकेट बना के उसको खाली छोड़ देते हैं, तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाता है, वो एग्जाम्पल है या किसका सिंबल है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब ऐसा सेट जिसका कोई एलिमेंट ना हो, तो एम्प्टी सेट। या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे ये किसका सिंबल है, ये भी सिंबल है एम्प्टी सेट। ये फाइल क्या है, फाइल जो है ये रिप्रेजेंट करता है, ये जो है एम्प्टी सेट।
एम्प्टी सेट का मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई भी मेंबर ना हो तो हम लोग बोलते हैं ये एम्प्टी सेट है। अच्छा, उसके बाद से देखिए इक्वल सेट। इक्वल सेट का एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। इक्वल सेट जैसे देखिए, इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट, इक्वल सेट जैसे मान लीजिए आप दो सेट है ए और बी, और उस सेट के मेंबर सेम है लेकिन उसका ऑर्डर जो है इंटरचेंज है। जैसे मान लो एक सेट ए है और सेट ए का मेंबर है, सेट ए का मेंबर है 3, 7, 8, और एक सेट बी है, एक सेट बी है और इसका जो नंबर का ऑर्डर है वो चेंज है। इस तरह से 8, 7 और 3। तो ये क्या है? देखिए, ए में भी 3 मेंबर है, बी में भी 3 मेंबर है और मेंबर भी सेम है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे दिस इज द एग्जांपल ऑफ द इक्वल सेट। सेट के बाद अब हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? देखिए, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? देखिए, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? जैसे मान लो 2 सेट हैं और दोनों सेट के मेंबर इक्वल है, नंबर ऑफ मेंबर इक्वल है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए एक सेट ए है और सेट ए का मेंबर है P, Q और R, और एक सेट बी है जिसका मेंबर है R, R नहीं, U, V और W। अब देखो दोनों क्या है? दोनों सेट इक्विवेलेंट है क्योंकि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है इसमें भी 3 नंबर है एलिमेंट्स के, इसमें भी 3 नंबर है, तो दोनों क्या है? सेम है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द इक्विवेलेंट सेट। नाउ वी डिस्कस व्हाट इज द सबसेट ऑफ एनी सेट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसेट क्या होता है? व्हाट इज द सबसेट ऑफ एनी सेट? सबसेट, सबसेट क्या होता है हम डिस्कस करेंगे कि सबसेट क्या होता है। व्हाट इज सबसेट ऑफ एनी सेट? सबसेट ऑफ एनी सेट। व्हाट इज सबसेट? सबसेट, सबसेट क्या होता है? देखो सबसेट क्या होता है? देखिए, सबसेट को लिखने का यदि ऐसे कहीं लिखा है तो ये क्या है? दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट। जैसे मान लो आप कि ए और बी 2 सेट है, ए और बी 2 सेट है और बी के सारे मेंबर, ध्यान से सुनिए, बी के सारे मेंबर ए में यदि है, बिलोंग करते हैं, तो हम बोलेंगे कि बी क्या है? बी जो है सबसेट है ए का। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। इफ ए एंड बी आर द 2 सेट, every member of the B belong in the set A is known as the subset. एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखो, जैसे सपोज करो एक सेट ए है जिसका मेंबर है, सेट ए का मेंबर है 2, 3, 4, 5, 9, 8, और एक सेट बी है, एक सेट बी है, एक सेट बी है जिसका मेंबर है 4, 9 और 3। अब देखो, आप ध्यान से देखो, बी के सारे मेंबर ए में है कि नहीं है? बी के सारे मेंबर ए में प्रेजेंट है कि नहीं है? एवरी मेंबर ऑफ द बी बिलोंग इन द सेट ए। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि जो बी है वो ए का सबसेट है। बी इज द सबसेट ऑफ इट। आप देखो ऐसे लिखते हैं, बी, ये किसका सिंबल है? सबसेट का। बी इज द
सबसेट ऑफ ए। अनदर एग्जांपल, एक दूसरा एग्जांपल देखिए। सपोज करो आप एक सेट है R, इसका मेंबर है A, B, C और D। तो क्या बोलेंगे? अच्छा, और एक सेट, दूसरा सेट है यस का, देखो यस में B और C। अब देखिए यस के सारे मेंबर, यस में कौन कौन से लोग? बी और सी आर में प्रेजेंट है कि नहीं है? तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? यस जो है, यस सबसेट है किसका? आर का। एस इज द सबसेट ऑफ द आर, ऐसे लिखते हैं, एस इज द सबसेट ऑफ द आर। समझ में आया सबसेट क्या होता है? तो ए और बी यदि दो सेट हैं, तो every member of the set B is belong in the set A, then B is the subset of A. क्लियर हो गया? नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कि एक चीज मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। अभी मैंने डिस्कस किया था एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या है? एम्प्टी सेट को मैं डिस्कस किया था ऐसे फाइव, या फिर ऐसे आप लिख सकते हैं, ये किसका सिंपल है? ये एम्प्टी सेट का है। तो एम्प्टी सेट जो होता है वो किसी भी सेट का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एनी सेट। किसी भी सेट का, कोई भी सेट हो तो जो एम्प्टी सेट होगा वो सबसेट होगा। और एक चीज और है, कोई भी सेट अपना खुद का सबसेट होता है। Every set is the subset to itself. Every set is the subset to itself. यानी कोई भी सेट वो अपना सबसेट होता है। अंडरस्टैंड? तो ये मैंने डिस्कस किया कि सबसेट क्या होता है। अब देखिए, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि पावर सेट क्या होता है। What is the power set? अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि पावर सेट क्या होता है। पावर सेट, नाउ वी डिस्कस व्हाट इज द पावर सेट। क्या होता है? किसी भी सेट के कितने पावर सेट होते हैं। पावर सेट पहले मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ, व्हाट इज द पावर सेट। देखिए आप, पावर सेट क्या होता है? व्हाट इज द पावर सेट। किसी भी सेट के, कोई भी सेट हो, किसी भी सेट के जितने सबसेट होते हैं उनका कलेक्शन ऑफ एनी सेट, कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट इज नोन एज द पावर सेट। किसी भी सेट के जितने भी सबसेट हैं उनको कलेक्ट करके एक सेट बना दिया जाए तो हम लोग बोलेंगे ये पावर सेट है। जैसे आप देखिए, मैं आपको डिफाइन कर दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि पावर सेट क्या होता है? व्हाट इज द पावर सेट? कलेक्शन ऑफ आर सबसेट ऑफ एनी सेट इज नोन एज द पावर सेट। नाउ पावर सेट, जैसे सपोज करिए ये सेट ए है। सेट ए में देखो, सेट ए में एक मेंबर है, मान लो 2 मेंबर, 2 मेंबर है, 1 और 2। अब देखो इसके सबसेट कौन कौन से हो सकते हैं? इसका सबसेट हो सकता है एक 1 भी इसका सबसेट है, और देखिए और क्या है 2 भी इसका सबसेट है, और देखिए एक itself, अभी मैंने क्या बोला? Every set is the subset to itself। 1 2 इसका सबसेट है, और एक 5 empty set। तो ये जो है ये इसके सबसेट पॉसिबल है। ये सिर्फ सेट ए के इतने सबसेट पॉसिबल है, एक 1 2 फिर 1 2 और 5। अब हम इसको एक सेट बनाए, मीन्स एक ब्रैकेट में ऐसे लिख दिया मैंने, ऐसे लिख दिया ब्रैकेट में, और यहाँ पे क्या किया? पी ए, मतलब
power set of the A. The collection of the all subset of this set is known as the power set. एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि पावर सेट क्या होता है। देखो एक एग्जाम्पल और आप देखो, जैसे मान लो एक सेट बी है, एक सेट बी है और जिसके 3 मेंबर हैं, जिसके 3 मेंबर हैं, एक है ए, बी और सी। अब देखो इसके सबसेट कौन कौन से पॉसिबल हैं। देखो इसके सबसेट एक ए हो गया, फिर क्या हो गया, बी हो गया, फिर क्या हो गया, देखो सी हो गया, फिर क्या हो गया, देखो ए बी हो गया, और क्या हो गया, देखो बी सी हो गया, और क्या हो गया, ए सी हो गया, और एक क्या हो गया, ये गेट सेल्फ खुद हो गया, एक खुद ये हो गया, ए बी और सी हो गया, और एक क्या हो गया, ये 5 हो गया, एक 5 हो गया। तो ये क्या है, आप ये देखो कितने जो ये सारे इसके सबसेट हैं, ये 20 का सबसेट है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये सारे क्या है, ये सारे सबसेट हैं बी के। अब इसको मैंने कलेक्ट कर लिया और एक सेट बना दिया, ऐसे ब्रैकेट में इसको डाल दिया, ब्रैकेट में, और ये क्या हो गया, ये हो गया पी बी मीन्स पावर सेट ऑफ द बी। ये हो गया पावर सेट ऑफ द बी। तो ये कलेक्शन हो गया। अभी इसका एक फार्मूला होता है कि कितने नंबर किसी भी सेट में कितने सबसेट हो सकते हैं। तो क्या फार्मूला है, फार्मूला है, देखो फार्मूला है 2 पे पावर n। क्या है फार्मूला, ये किस चीज का फार्मूला है, ये किस चीज का फार्मूला है, किसी भी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं। क्या फार्मूला है, 2 टू दी पावर n। जैसे देखो सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं, तो 2 एलिमेंट है तो n की जगह आप 2 रखो तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मीन्स 4। तो देखो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4। अच्छा अब देखो, अब सेट बी का एग्जांपल देखो, सेट बी में कितने एलिमेंट है, 1 2 3, और इसके कितने नंबर ऑफ सबसेट है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 2 की जगह n की जगह आप 3 रखो तो 2 क्यूब क्या हो जाएगा 8। तो 8